हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो तो हेलो बच्चों, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्विक रिवीजन फॉर्मूला द चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, सो नाउ सी फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट है कि बाबा वेव ऑप्टिक्स में वी हैव स्टडीड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। करेक्ट, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? व्हेन the light wave is incident on the what opaque surface, correct? Opaque surface मतलब ऐसा surface जिसका transmissivity 0, then light goes back after incident into the same medium. That phenomenon is called the reflection of light, correct? So यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों कि now see this ray of light AB is called the what? Incident ray, correct? Which is incident at point B. Then after incident on point B, ray again goes back into the same medium, so BC is called the reflected ray. जहां कहीं पे लाइट इंसिडेंट हुआ B पॉइंट पे, वहां पे ड्रॉ किया कॉमन नॉर्मल टू द सरफेस, करेक्ट? सो कॉमन नॉर्मल रिप्रेजेंट्स द BN इज अ व्हाट? कॉमन नॉर्मल। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट? यू नो दैट I is called the angle of incidence, the angle made by incident ray with the common normal. R is called the angle of reflection, angle made by reflected ray with the common normal. Correct? So this is the terminology. Now what is the first law of reflection? Ki baba, angle of incidence is equal to angle of reflection. What is the second law? Incident ray, reflected ray and the common normal lies in same plane. क्या है बोलो? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड कॉमन नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है बच्चों, दिस इज अबाउट द व्हाट? रिफ्लेक्शन। देयर आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। टर्मिनोलॉजी आई ऑलरेडी टोल्ड। I is the angle of incidence, R is the angle of reflection, AB is the incident ray, BC is the reflected ray and the BN represents the common normal. Okay, ठीक है। Now next one is what? Refraction. So what is a refraction? That is the bending of light ray when it travels from one medium to another medium. It's called the what? Refraction of light. Or you can also say that when the light is travel from one medium to another medium, there is a change in speed of light. That phenomenon is called the refraction. Now see, यहाँ पे आप देख रहे हो, this is the medium 1, medium 2, then ये जो सरफेस होगा, this is the what? इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया, है ना? जैसे मैं कह रहा हूं बाबा, बाहर से एयर से लाइट ग्लास में एंटर किया, सो ये क्या हुआ उसका? इंटरफेस। सो AB is the what again? Incident ray. Now light is transmitted into second media. So BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिफ्रैक्टेड रे। कि ये बेंड हुआ है कि नहीं हुआ? यस, हो गया। एक्चुअली जाना कहां चाहता था? स्ट्रेट। सो AB is the incident ray, BC is now refracted ray and जहां पे लाइट इंसिडेंट हुआ वहां पे हमने ड्रॉ किया कॉमन नॉर्मल। So same, what is the I now? Angle of incidence, angle made by incident ray with the common normal. What is the R in this case? Angle of refraction, angle made by refracted ray with the common normal. So बच्चों आपको मालूम है ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि बाबा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो क्या होता है? First, the refractive index of medium is going to change, speed of light is going to change, wavelength of light is also going to change, but one parameter remains constant, frequency does not change. Is it clear? Same terminology, index mu refractive index, V speed of light, F frequency of source of light. Correct? Now in this case what is the first law? जो हमने पिछले केस में स्टडी किया था वो क्या था? सेकेंड लॉ क्या था रे रिफ्लेक्शन में? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड कॉमन नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। वैसे यहां पे क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड कॉमन नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्नेल्स लॉ। क्या कहता है स्नेल्स लॉ? इन शॉर्ट स्नेल्स लॉ कहता है म्यू इंटू साइन थीटा रिमेन्स
constant, or you can also say that the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction remains constant. That constant is called absolute refractive index. दो टाइप के इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब उसमें एक मीडियम कंपलसरी एयर और वैक्यूम होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब बोथ मीडियम्स आर डिफरेंट। तो यहां से हम क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज म्यू। मतलब अगर ये कंडीशन के लिए हमको अगर अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करोगे बच्चों, पहले केस में कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, वहां पे कितना एंगल बना I, तो आप कैसे राइट करोगे μ1 इंटू साइन ऑफ I। सेकेंड मीडियम में चले गए तो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, वहां पे कितना एंगल हुआ R, तो आप क्या लिखोगे μ2 इंटू साइन ऑफ R, मतलब म्यू साइन थीटा रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ यहां पे बच्चों आपको मालूम है वन मोर थिंग कि हम रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आया तो कैसे यूज करते हैं रे, इफ आई एम कंसीडरिंग द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, सो आप कैसे राइट कर सकते हैं बच्चों, म्यू लेफ्ट साइड में 1 राइट साइड में 2, मतलब लाइट जा रहा है मीडियम 1 से 2, इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। अरे करेक्ट, आपको मालूम है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है दैट इज ए डेंसर, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसको बोलते हैं रेयरर। Is it clear? And refractive index is what? Inversely proportional to speed. That's why mu2 upon mu1 corresponds to v1 by v2. Clear? ठीक है। Now next. Now see, next we have studied the concept of polarization. What is a polarization? Correct? It is a phenomenon in which ordinary light, that is unpolarized light, is converted into plane polarized light with the help of some which material? Polarizer. It may be the tourmaline crystal or it may be the Nichols prism. That materials are used to convert the ordinary unpolarized light into plane polarized light. That phenomenon is a polarization. So यहाँ पे आप देख रहे हो this light represents the what? Unpolarized light which consists of electric field vibrations in all possible directions. Now here we are use the polarizer. First polarizer. तो suppose I is the intensity of original source of light, correct? Whenever it passes through the first polarizer, correct, compulsory we already studied in the board कि intensity क्या हो जाती है, half हो जाती है, correct? Again if I use the second polarizer then intensity आपको मालूम है this is called the pass axis. This is called the what? Pass axis. Now in this case, in second case, angle made is the theta, that is the previous pass axis and current pass axis. Again third polarizer is used. So आप देख रहे हो बच्चों, तो मेलस लॉ ने क्या कहा था बोलो, for this condition how we can write the equation, three polarizer है तो intensity, that is the final intensity which is coming outside this final polarizer, फर्स्ट से पास किया तो कितना हुआ, I0/2 हुआ, ओरिजिनल का हाफ हुआ। इज इट क्लियर? और उसके बाद में जितने पोलराइज आओगे वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, cos स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा 2। ये कहता है मेलस लॉ। उसने क्या दिया, बाद में सेकंड पोलराइजर से पास किया तो कितना एंगल था, थीटा 1, बाद में थीटा 2, सो इट इज प्रोसीड, सो फाइनल इंटेंसिटी बिकम्स I0/2 cos स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा 2। अरे करेक्ट, दिस इज द मेलस लॉ। सो आपको मालूम है बच्चों यहाँ पे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी ऑलरेडी स्टडी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाट इज द इक्वेशन, E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ kx प्लस माइनस ओमेगा t। यहाँ पे E is the electric field vector, E0 is the amplitude of electric field, K is called the wave factor whose formula is 2 pi by lambda, omega is the angular frequency, X represents the what, direction of propagation of wave after time t। बीच में माइनस साइन आया तो वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है, बीच में प्लस साइन आया तो वेव नेगेटिव एक्स में जा रहे हैं। सो समझ में आया, दिस इज कॉल्ड द मेलस लॉ। इज इट क्लियर? ठीक है। Next one is what, you already studied the Brewster's law.
क्या कहता है ब्रीवस्टर्स लॉ? बाबा ब्रीवस्टर्स ने क्या यूज किया? ये एक सरफेस के ऊपर वो लाइट इंसिडेंट कर रहा था, कंटिन्यूअसली उसने क्या किया? अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट किया. इट continuously change the angle of incidence, correct? At a one particular angle of incidence, he found that ki reflected light is plain, completely plain polarized light. इंसिडेंट कौन सा हो रहा था? अनपोलराइज लाइट. एक पर्टिकुलर एंगल पे उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रिफ्लेक्ट करके जो लाइट जा रहा है वो कंप्लीटली क्या हुआ? पोलराइज. एट दैट टाइम ही फाउंड द रिफ्रैक्टेड रे लाइट इज पार्शली पोलराइज लाइट. सो उसने जो एंगल पे, जिस एंगल पे ये हुआ कि ऑर्डिनरी इंसिडेंट, ऑर्डिनरी अनपोलराइज लाइट कन्वर्टेड इनटू plane polarized light, that angle is called the polarizing angle or the Brewster's angle. That is a theta p. Correct? As per law, this is theta p, this one is also theta p. Then also he observed the second observation. During this time, the angle between reflected and refracted ray is 90 degree. Is it clear? So यहां से आप देख रहे थे बच्चों, इक्वेशन बना था ये स्ट्रेट लाइन. सो दिस राइट साइड इट फॉर्म्स द लीनियर पेयर एंगल्स. सो वी ऑब्जर्व दैट इज द व्हाट? थीटा. डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूं, फॉर्मूला रिवीजन ले रहा हूं. तो बाबा tan of polarizing angle or tan of Brewster's angle is equal to, बोलो, is equal to mu2 upon mu1. Is equal to what? Mu2 upon mu1. In this case, ray of light is travel from rarer to denser. Is it clear? So this is the formula to calculate the Brewster's law. You can also say that यहाँ से the Brewster's angle plus angle of refraction is equal to 90 degree. Correct? So any doubt? This is the Brewster's law. Clear? Okay. This is the equation. Now next. Now interference. What is interference? Baba, when the two waves traveling in the same direction are superimposed or overlap each other, the resultant wave has maybe the lower the amplitude, higher in amplitude, or the same in amplitude. That phenomenon of overlapping of wave is called the what? Interference. Okay, that interference phenomenon we studied with the help of Young's double slit experiment. करेक्ट. सो यहां से आपको मालूम है बच्चों, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने यहां पे कंसीडर किया मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट. मतलब उसका लाइट क्या होगा? हैविंग द सिंगल वेवलेंथ. आप देख रहे हो यहां से S1 एंड S2 आर द टू स्लिट्स. ओके, टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल d. न्यूमेरिकल में आता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, सो इंडिकेटेड बाय small d. Correct? When the light is passes through this, we know that कि बाबा Huygens principle ने कहा था कि every point on this acts as a secondary source of light, emits the secondary waves. So ये दो slits में से आने वाले light waves एक दूसरे से इंटरफियर हो गए और उसने ऑब्जर्व किया कि स्क्रीन पे there is one continuously steady interference pattern is obtained. So what is the capital D? It is a distance between slit and the screen. लेकिन ये कब मिलेगा ऐसा यूनिफॉर्म? तो you already studied there are some conditions to obtain steady interference pattern. First condition is what? The two sources of light must be monochromatic. Two sources of light must be coherent. Two waves should be travel in the same direction. Two waves having the closely same amplitude or same intensity. The two waves must be in same state of polarization. The slit should be narrow. Correct? Then you will get this steady interference pattern. Then observe that alternatively bright dark band is formed. But you know that कि बाबा एट सेंट्रल पोजीशन यहां पे हमेशा सेंट्रल ब्राइट बनेगा. ऐसा क्यों? बिकॉज जो बैंड बनेगा वो डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस पे. जब आप देख रहे हो यहां से रे निकला S1, कुछ तो मैं नाम देता हूं O, यहां से रे निकला S2O, बोथ ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस, सो पाथ डिफरेंस हुआ 0. सो हमेशा इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0. सो यहां से क्या बनेगा? हमेशा सेंट्रल ब्राइट बैंड. Are you correct? So that's why this is central bright band, and other जो on both the sides of the central bright band, alternatively dark bright bands are formed.
इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ यू डिराइव द वन इक्वेशन इन द बोर्ड कि बाबा यू कंसिडर एनी वन पॉइंट P, करेक्ट? तो यहां से स्लिट S1 से लाइट ट्रेवल करेगा, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? S1P. S2 से जो रे ऑफ लाइट जाएगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? S2P. सो पाथ डिफरेंस होता क्या है? रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्स, S2P माइनस S1P. तो ये पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि यहां पे ब्राइट बैंड फॉर्म होगा या डार्क बैंड. अरे समझ में आ रहा है? सो नॉमेनक्लेचर अंडरस्टूड. स्मॉल d is the distance between two slits, capital D is the distance of screen from the slits, lambda is the wavelength of monochromatic light source, S1 and S2 are the slits, beta, what is the beta? It is a fringe width. What is a fringe width? It is the distance between two successive bright or dark bands. This is called the fringe width or bandwidth. Delta x is path difference, delta phi is phase difference. Is it clear? This diagram is clear? Okay. Now see. So यहां से बच्चों अभी बनेंगे फॉर्मूले. So पहला रिलेशन क्या है रे? That is a relation between phase difference and path difference. तो आपको मालूम है phase difference is equal to k times of path difference. और आपको मालूम है k is called the wave factor or angular wave number or the propagation constant. So we can write delta phi is equal to 2 pi by lambda into path difference. So this is the relation between what? Phase difference and path difference. Is it clear? ठीक है. Now next, for constructive interference condition. Constructive interference means what? The resultant amplitude is maximum after the superimposition. Resultant intensity is also maximum. So what is the condition for that? बोलो कि बाबा path difference should be integral multiple of wavelength. Integral multiple of wavelength, that is n start from 0, 1, 2. Are you correct? Next, what is the condition? Phase difference for constructive. The phase difference should be even multiple of pi. मतलब क्या? 2n pi. Or is it clear? Again n start from 0, 1, 2, 3. So correct. Next one is a what? Condition for nth bright fringe. Now आपको पता है all the distance of nth bright or nth dark measured from the what? Central bright band. So this distance is a what? Ynth bright or Ynth dark. So what is that formula? Yes, this Yn is equal to n lambda capital D by small d for the constructive or the bright band. Now for destructive interference, that the two waves which are superimpose each other having the resultant amplitude is minimum or resultant intensity is minimum. So what is the path difference in this case? Yes, path difference is odd multiple of lambda by 2. Correct. What is the phase difference? Phase difference is odd multiple of pi. Correct. And second one is what रे? जैसे यहाँ पे हमने nth ब्राइट का कंडीशन निकाला, वैसे व्हाट इज द कंडीशन ऑफ nth डार्क? करेक्ट. 2n minus 1 lambda capital D upon 2D. Is it clear बच्चों? So this is about the constructive, destructive, path difference, phase difference conditions. Any doubt? नहीं? ठीक है. Next. Now see, fringe width और bandwidth already मैंने बताया क्या होता है वो? It is the distance between two adjacent bright band or the dark band. In both the cases, formula is same for bright band or dark band. So what is the formula? Beta is equal to lambda capital D by small d. What is the formula to calculate the fringe width? Most important, lambda d by d. यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, कि बाबा आता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किसी लिक्विड में डिप किया तो फ्रिंज विड्थ कितनी चेंज हो जाएगी? तो बच्चों फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगी बीटा टाइम्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. व्हेन यस YDSC is carried out in medium having refractive index mu. Are you clear? Most important formula. Is it clear? So beta dash is equal to beta by mu. This experiment is carried out in air, free space, यहाँ पे medium में.
ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नाउ सी इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। सो सबसे पहले आपको मालूम है कि दो वेव सुपर इंपोज हुए तो उसका रिजल्टेंट कैसे डिटरमाइन करते रहे। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट? बोलो, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाइ। नहीं तो स्क्वायर के टर्म में राइट करता हूं तो इंटेंसिटी इजी समझ में आएगा। सो ar स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi. Phi is the phase difference between the two waves. Now see, so यहां से बच्चों कि बाबा इंटेंसिटी आपको मालूम है, बेसिक इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो यहां से इक्वेशन क्या बनता है? रिजल्टेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस रूट 2 इंटू रूट I1 I2 cos ऑफ फाइ। आया पक्का समझ में? यस। आपको मालूम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। सो क्या होता है यहां पे? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2। सिमिलरली रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, क्या होती है? रूट I1 प्लस रूट I2 ब्रैकेट स्क्वायर। और एक चीज ध्यान में रखो, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ स्लिट। कभी कभी स्लिट का रेशियो आता है तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। क्वेश्चन बनता है, इज इट क्लियर? डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा रे? ये AR क्या है? मैक्सिमम है। इंटेंसिटी क्या है? मैक्सिमम है। तो यहां से इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है रे? 4I0 cos स्क्वायर फाइ बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या होता है? 4I0 cos स्क्वायर फाइ बाई 2। और यहां का इक्वेशन अभी लिखता हूं, मिनिमम इंटेंसिटी A1 माइनस A2 एंड रिजल्टेंट रूट I1 माइनस रूट I2 ब्रैकेट स्क्वायर। इसमें कुछ डाउट है? समझ में आ गए सब फॉर्मूले? करेक्ट। कंस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन, फॉर कंस्ट्रक्टिव द कंडीशन, फॉर डिस्ट्रक्टिव, एंड दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव, इज इट क्लियर? Now see, next, optical path we studied. What is the optical path? It refers to the equivalent distance traveled by the light source in the vacuum. अरे करेक्ट, मतलब कि बाबा सेम फेज मेंटेन करने के लिए उसको वैक्यूम में कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला मालूम है आपको? क्या होता है जनरली? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल इन दैट मीडियम। तो जनरली आप कैसे लिखते हो बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इनटू डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनटू डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन दैट मीडियम। सो मतलब ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन दैट मीडियम। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डिफ्रैक्शन। What is a diffraction? It is a bending of light waves around an edges of an obstacle is called the diffraction. We have studied Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction. Correct. Now in this case we are going to discuss the Fraunhofer diffraction due to single slit. इस केस में बच्चों आपको मालूम है we are getting the what? Plane wavefront, because the source is placed at the infinite distance. That's why we are using the convex lens which having the focal length f. Then this slit is there, so light is bending around these edges of an obstacle, interfere with each other, and you will get this pattern which represents the intensity versus the theta, angular fringe width. Correct? You observe that in case of YDSC the bands are of equal width and the equal intensity amplitude, but in this case you are observing intensity is unequal. The width of central bright band is maximum, then it is vary. मतलब क्वेश्चन आता है कि why in diffraction pattern it's of what? Unequal width and unequal intensity. करेक्ट। सो नाउ सी बच्चों, तो यहां से ये जो है लैम्बडा बाई ये, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थीटा। ये क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा ऑन बोथ द साइड, अगेन सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा. So like this on both this means intensity is continuously decreasing on both side. Is it clear? So बच्चों यहाँ पे आपको मालूम है फिर से, यहाँ पे पिछले केस में स्मॉल d is the distance between two slits, यहाँ पे ये स्लिट का विड्थ a होता है,
A is the slit width. Then distance between the slit and the screen is represented by again capital D. अरे is it clear? So यहाँ पे आपको मालूम है A क्या है, बोलो slit width. D क्या है, distance between slit and screen. और F क्या है बच्चों, focal length of, कौन सी लेंस है रे, कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस. अरे क्लियर, ठीक है, यहां से ये समझ में आया. तो हमेशा आपको पूछते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो यू हैव टू फाइंड द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, विड्थ ऑफ, सॉरी सेकेंडरी ने सेंट्रल मैक्सिमा. अरे करेक्ट. तो यहां से देखो अभी आपके कंडीशंस वेरी होंगे बच्चों, कि यहां पे देखो अभी पाथ डिफरेंस, मतलब जो YDSC का कंडीशन है वो यहां पे एग्जैक्टली थोड़ा उल्टा होता है. मतलब क्या, कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डार्क बैंड में. तो पाथ डिफरेंस इन दिस केस इज प्लस माइनस एन लैम्बडा, जो पिछले केस में ब्राइट बैंड का कंडीशन था. करेक्ट. यंत्र ब्राइट का, बोलो बच्चों, ब्राइट का क्या होगा अभी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, वहां पे 2n माइनस 1 था, मतलब और, तो यहां पे क्या होगा 2n प्लस 1 टाइम्स लैम्बडा बाई 2. ध्यान में रखो, कंडीशंस आर एग्जैक्टली अपोजिट, पाथ डिफरेंस कंडीशंस. अरे इज इट क्लियर. यहां पे क्या है बच्चों, लोकेशन ऑफ यंथ मिनिमा, मतलब y कैसे कैलकुलेट करते हैं, बोलो y यंथ मिनिमा इज इक्वल टू, आपको मालूम है पाथ डिफरेंस इनटू क्या होगा, बोलो 2n, सॉरी मिनिमम n लैम्बडा d, यहां पे स्मॉल d होता है, खाली आएगा स्लिट विड्थ आएगा. यहां पे क्या होगा, बोलो y nth मैक्स क्या आ जाएगा, बोलो बच्चों 2n प्लस 1 लैम्बडा d बाय 2 है. पक्का अंडरस्टूड, इसमें कुछ डाउट. सो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जहां पे हमेशा क्वेश्चन बनता है वो है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. मतलब कौन, डायग्राम में देखो ये दिखाई दे रहा है ना, दिस इज अ विड्थ. करेक्ट. तो क्या होता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सो फॉर्मूला राइट करो, विड्थ इज इक्वल टू 2 लैम्बडा डी बाय ए. करेक्ट. सो बच्चों यहां पे दूसरा फॉर्मूला है एंगुलर फ्रिंज विड्थ. एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब कौन, थीटा. तो क्या होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा, बोलो क्या होता है, इट इज द बीटा यानी फ्रिंज विड्थ अपॉन कैपिटल डी, मतलब क्या रहेगा लैम्बडा बाय ए. अरे करेक्ट. लेकिन मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, ब्राइट की. तो यहां से फॉर्मूला क्या होगा, ब्राइट वाला, मतलब क्या 2n प्लस 1 लैम्बडा बाय 2a, डी नहीं यहां पे, डिवाइड बाय टी. और यहां पे क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा बाय a. पक्का अंडरस्टूड. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ एंगुलर फ्रिंज विड्थ, दिस इज अ विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. लेकिन इस केस में बच्चों एक चीज ध्यान में रखो हमेशा कि बाबा इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/5 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ स्क्वायर. करेक्ट करो. इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर स्लिट विड्थ स्क्वायर. इज इट क्लियर, कुछ डाउट नहीं. So now next, resolving power. क्या होता है resolving power? The ability of optical instrument to distinguish two objects which are very close to each other. उसको वो separate करके दिखाता है. That ability is what resolving power. So resolving power का general formula क्या है बच्चों? What, how to calculate? पहला आता है limit of resolution, दूसरा आता है resolving power. Resolving power क्या होता है? Reciprocal of limit of resolution. तो what is the limit of resolution? तो आपने स्टडी किया, there is a one criteria, that is a relief criteria. relief ने क्या दिया कि बाबा limit of resolution का क्राइटेरिया क्या होता है, relief criteria कि बाबा we can say that the two images are just resolved. There are the three condition, unresolved, just resolved, well resolved. relief ने किसकी कंडीशन दी, just resolved. तो वो क्या कहता है, when we are saying that the two images are just resolved, when the central maxima of diffraction pattern of first object it fall on the what,
first minimum of the diffraction pattern of second. That condition is called the just resolve. And what is the limit of resolution now? It is the minimum linear separation or angular separation when the two images are just resolve. Is it clear? ठीक है. सो अभी देखते हैं. नाउ सी, सबसे पहले कंडीशन देखते हैं रिजॉल्विंग पावर के माइक्रोस्कोप के लिए. उसमें दो कंडीशन विथ नॉन ल्यूमिनस एंड द सेल्फ ल्यूमिनस. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर फॉर्मूला? बोलो, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है रे? बोलो, लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा. क्या होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला? लैम्बडा इज द वेवलेंथ, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द लेंस एंड द ऑब्जेक्ट एंड द aperture. Is it clear? Then this is clear. Alpha is the angle subtended by the image with the objective. Clear? So numerical aperture किसको कहते हैं इस टर्म में? Numerical aperture is a म्यू साइन अल्फा. न्यूमेरिकल एपर्चर किसका आइडिया देता है? एबिलिटी टू गैदर द लाइट सो दैट इमेज बिकम मोर एंड मोर शार्प. करेक्ट. देन व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर? हमने देखा रिजॉल्विंग पावर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. सो यहां से फॉर्मूला क्या होगा रे? रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू, बोलो, 2 म्यू साइन अल्फा अपॉन lambda. This is the microscope with non-luminous. Now next, microscope with self-luminous. क्या चेंज होगा रे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन में? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज इक्वल टू, बोलो, 1.22 लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा. यानी यू कैन से दैट 0.61 लैम्बडा अपॉन म्यू साइन अल्फा. दिस इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. आपको मालूम है न्यूमेरिकल एपर्चर वही किसको बोलेंगे? न्यूमेरिकल एपर्चर. अरे कभी कभी आएगा ना न्यूमेरिकल में, खाली कैलकुलेट द न्यूमेरिकल एपर्चर, तो आपको पता होना चाहिए. इट इज व्हाट? म्यू साइन अल्फा. व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर? रेसिप्रोकल. सो क्या आ जाएगा बोलो? सो रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू म्यू साइन अल्फा अपॉन 0.61 टाइम्स लैम्बडा. अरे बच्चों आया क्या समझ में? दिस इज द व्हाट? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, न्यूमेरिकल एपर्चर, रिजॉल्विंग पावर फॉर माइक्रोस्कोप विथ सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स. अरे इज इट क्लियर? इसमें कुछ डाउट नहीं? एंड द लास्ट इज व्हाट? टेलीस्कोप. करेक्ट. टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना? उसमें हमने देखा था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. ठीक है. सो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है रे उस केस में? बोलो, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशंस 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल डी. अरे करेक्ट. डी इज द व्हाट? इट इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द लेंस और द एपर्चर ऑफ द लेंस. अरे करेक्ट. दिस वन इज कॉल्ड द एपर्चर ऑफ द लेंस. इज इट क्लियर? ठीक है. सो रिजॉल्विंग पावर क्या होगा खाली इसका? रेसिप्रोकल, मतलब d अपॉन 1.22 लैम्बडा. Clear बच्चों? So we have finished the what? Quick formula revision on the wave optics. Now we are going to solve the question on 2023. Correct? So चलो start करते हैं question number 1. चलो, what is the question number 1? चलो देखो. तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर.